लेबर टर्नओवर क्या था? टीचर के लिए वो सबसे richest billionaire, lady billionaire. What is labor turnover? इसके पहले साथ में labor turnover भी I have taught you. What is labor turnover? The number of workers leaving organization in a particular period of time is known as labor turnover. Labor turnover का जब features बता रहे थे, तो I told you कि labor turnover का there are some features like there are some avoidable factors and there are some unavoidable factors related to labor turnover. Okay, avoidable factors are those factors which even the organization after proper management cannot do anything about. जैसे पर्सनल बेटरमेंट, अगर आपका कोई पर्सनल अच्छा स्कोप है, यहाँ से फॉरेन जाने का चांस है, वहाँ पैसा 5 टाइम्स आपको मिल रहा है, you have a better lifestyle, you have everything better, you will definitely leave the organization or the unit. Okay, the organization, even the organization cannot do anything regarding that. और अवॉइडेबल रीजंस में हमने और भी चीजें देखी थी, जैसे female labor turnover is more than male labor turnover for obviously the social causes like marriage and pregnancy. Fine, there were other factors also. In unavoidable, जो चीजें avoid नहीं की जा avoid की जा सकती हैं, avoidable यानी ये वैसे फैक्टर्स हैं जिनको अवॉइड करके मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकती हैं, अगर मैनेजमेंट इस बात को रिकग्नाइज करे कि ये प्रॉब्लम है. इसका एग्जांपल I drew parallel to your therapeutic thing to make you understand this. For example, when you have fever, you know that there is something not normal about your body. There is something very abnormal about your body. But what is the actual cause is something that is not known to you unless you diagnose it. Unless you diagnose it. वो fever एक simple fever हो सकता है, वो fever viral हो सकता है, anything. So unless you get it tested, you research about it, you diagnose it, you'll not come to know what is wrong with your high temperature of the body. Similar is the case with labor turnover. अगर employees छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा, to an extent labor turnover is fine, 5% तक ये भी बताए थे, 5% तक labor turnover होता है तो घबराने की बात नहीं है organizations को. But if the labor turnover continues happening even after beyond this 5%, there is something that the management should take note of. Okay, because labor अगर छोड़ के नहीं जाएंगे तो fresh blood, fresh enthusiasm, fresh ideas, new skills आना मुश्किल है. They will continue working the way they have always continued. Okay, for example, यहीं पे आप witness करते होंगे कि अलग-अलग teachers का पढ़ाने का तरीका अलग-अलग है, right? This is some teachers they'll send you PDF, some teachers they'll not send you PDF, they'll ask you to write down the essential points and make notes yourself while they're delivering lectures. I'm one of them. थोड़ा बहुत हम इसलिए लिखवा देते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है. अगर आप एड ऑन कोर्स है ये और आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर ये एड ऑन नहीं होता तो हम उतना भी नहीं लिख पाते, बस मेन पॉइंट्स लिखवाते हैं. That is the way I teach. Okay, that is the way I studied in my life. I never made notes, so I always wrote down bullet points, and every time I forgot that bullet point, I went back to book, so that there is no shortcut. Okay, so avoidable and unavoidable reasons. और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जब आप हायर स्टडीज करने जाते हैं, जैसे बीकॉम एंड ऑल दिस फाइन, पर आप जब एमबीए करने जाएंगे या आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो उसमें बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ना होता है, हर चीज का नोट्स बनाना संभव नहीं होता है. ठीक है, तो आप किताब निकालते हैं, किताब में मार्किंग करते हैं और जितनी बार आप भूलेंगे आप उतनी बार किताब खोलें, चाहे जो भी हो जाए. Google, YouTube video and all these are just accessory things and these will help you only when you know the subject. आप कुछ नहीं जानते और सोचिएगा कि 1 घंटे के YouTube लेक्चर से सीख जाइएगा वो सब्जेक्ट, तो there is a reason why something is supposed to be studied in 2 years. जिस चीज को कवर करने के लिए 3 महीने का सेमेस्टर दिया जाता है, उसको आप 1 घंटे के YouTube लेक्चर से नहीं समझ सकते. आपका नॉलेज कितना शैलो होगा वो आप समझ लीजिए. पढ़ लीजिए किताब से, नहीं समझ में आया
देन रेफर करते हैं तो ठीक है, अब ठीक है. So we studied that there are some avoidable and some unavoidable reasons. So avoidable reasons को management अगर takes note of it, the management can fix it. जैसे bad management policy, poor remuneration, poor working condition, low salary, poor supervision, और भी बहुत सारी चीजें. ये सारा फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बैड इंडस्ट्रियल रिलेशन के. तो आप जब कभी इंटरव्यू देने जाएंगे और वहां आपसे पूछा जाए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से, तो आप प्लीज ये बात मेंशन कीजिए अपने आंसर में कि आई वुड प्रेफर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अब ऐसा नहीं कि बोलने का भारी भरकम बोल के आ गए, फिर वो ग्रिल कर देगा क्योंकि वो जानता है कि बीकॉम के लेवल पे इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना मुश्किल है. समझ रहे हो ना, हम जानते हैं बीकॉम को कितना मालूम है, तो वो तो और इंटरव्यूअर है, तो आपको जस्टिफाई करना होगा अपने आंसर से. लेकिन अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो सर्टेनली आपका आंसर बेटर होगा बाकियों से. ओके, लेबर टर्नओवर वाज अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल, ये डिस्कस किया था आपने. नाउ आज हम लोग करने वाले हैं एब्सेंटिज्म. राइट डाउन दिस इन योर कॉपी. Why we say that labor turnover is avoidable and unavoidable both? जब absenteeism की बात आती है तो हम कहते हैं कि this is willful and this can be avoided. Okay? Absenteeism से क्या समझते हैं आप? Absent हो जाने का क्या मतलब है? ये हम क्लास में पहले भी बताएं. बोलो एग्जाम्पल दो, डेफिनेशन नहीं मान रहे. देखो, I'm an employee here. Resign देना. What are you saying? Absent means resign देना. No. देखो, suppose क्या? I'm an employee here. I have to go for my personal work for 4 days. I got my leave application signed. What is the purpose of getting the leave application signed? The purpose is to inform the authorities that I will be absent from so and so date and that my classes should be managed and substituted by other teachers. और मेरा जो काम है उस वक्त मेरे काम के लिए मुझे ना ढूंढा जाए. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का कोई chaos ना हो अगर मैं नहीं हूँ. जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्लास होता है 10 से 11, यहाँ पे मेरा स्टार्ट होता है बीकॉम को 5th में. उसके बाद तुरंत तुम्हारे साथ क्लास होता है. एक क्लास के बाद बीबीए में क्लास होता है. उसके पहले बीबीए में क्लास होता था. So when I'm taking 4 classes in a day and I got my leave application signed, I informed the authorities that I am not going to be present on so and so date. They will make some arrangement. Some other teacher will come and take the classes. उससे क्या होगा? chaos नहीं होगा. मेरा काम कोई और टेक ओवर करेगा तो काम में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा. But what if I get absent for 4 days straight? इसका मतलब 2 दिन मेरा यहाँ क्लास होगा, 2 दिन मेरा बोरिंग रोड में क्लास होगा. I am teaching different subjects to you. I am teaching different subject to PGDM students. और जब मेरे क्लास का टाइम होगा तो क्या होने लगेगा? शिल्पा मैम नहीं है, शिल्पा मैम नहीं है. स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे हैं क्लास में, कॉरिडोर में खड़े हैं. ये होगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें. स्टूडेंट हल्ला करने लगेंगे, क्लास के बाहर खड़े हो जाएंगे, मैम नहीं है, मैम कहाँ है. दिस विल कॉज chaos. ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में बताया गया, इस इंस्टीट्यूशन के सेंस में बताया गया. Now talking in regards to an organization, suppose करो कि प्रोडक्शन लाइन पे बैठता है वर्कर. ठीक है,
वो उसका काम है 8 घंटे का शिफ्ट और वो एब्सेंट हो जाए, सोचो कि क्या होगा। बाकी जो वर्कर्स हैं, लैपटॉप पे एक नंबर है, मेरा there are two here, they are given to faculty. So when we talk about absenteeism, suppose करो कि वर्किंग लाइन पे कभी फैक्ट्री देखे हो, यहाँ वर्कर बैठा है, वहां वर्कर बैठा है, जिसकी जो शिफ्ट है वो वही तो करेगा। जहां भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी शिफ्ट में काम होता है, शिफ्ट रिलीवर होता है। जो अगला बंदा आया, मान लो कि आदर्श और सचिन एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और अगले शिफ्ट में सुयश हैज टू कम एंड टेक ओवर आदर्श's वर्क, ठीक है। यानी सुयश इज द रिलीवर ऑफ आदर्श, उसको रिलीवर कहा जाएगा। आदर्श नॉर्मली तब तक काम छोड़ करके नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा काम खत्म हो गया निकल गए, आपकी ऑब्लिगेशन होती है। जैसे कॉलेज में क्या है, बेल बजी एकदम निकल गए, है ना, उसके बाद 1 मिनट भी ऐसे लगने लगेगा कि वो टीचर क्लास निकलना है, काम करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। 15 मिनट भी अगर तुम्हारा रिलीवर नहीं आया तो तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए अकाउंटेबल तुम हो जाओगे। वो नहीं होगा लेट से, वो थोड़ी सी डांट खाएगा लेट से आने के लिए, लेकिन तुम छोड़ के क्यों गए। तो 15 मिनट तक जब तक उसका शिफ्ट रिलीव नहीं करेगा सुयश, तब तक आदर्श कैन नॉट लीव। अब सोचो कि सुयश एब्सेंट हो जाए बिना बताए। एब्सेंट होने का मतलब है बिना बताए। When your leave is not approved, when you are absent without sanction, without notice, this is known as absenteeism. And it should not be confused with labor turnover. दोनों को इसलिए हम अलग अलग बताए। क्या होगा सुयश नहीं आएगा तो? आदर्श का बर्डन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। 4 दिन नहीं आया बिना बताए तब नहीं कर पाएगा वो काम, ठीक है, काम हैम्पर कर जाएगा। 1 दिन मैनेज करना इज फाइन, क्योंकि हो सकता है कि अगला शिफ्ट में सुयश को कहीं किसी और यूनिट में लगा दिया जाए। ओके, तो जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, हर बंदे का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। you are assigned your own responsibility, and in that case if you are absent, especially so in case of प्रोडक्शन लाइन, गाड़ी वाड़ी का कभी बिजनेस का न्यूज सुने हो, कभी देखे हो फ्लैश में भी कि फैक्ट्री कैसे होती है। लाइन से वर्कर्स मशीन पे बैठे होते हैं। अब उसमें अगर 3-4 वर्कर्स एब्सेंट हो जाए, क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्शन लाइन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। So this is known as absenteeism. यानी you are absent from your work without any notice or without any sanction. This is known as absenteeism. आपने नहीं बताया है अपने एम्प्लॉयर को कि मैं एब्सेंट होऊंगा, आपने नहीं लीव सैंक्शन कराई है, then you will be called absent. While we say that labor turnover is avoidable and unavoidable both, in case of absenteeism we call it willful and avoidable. ये जानबूझ के किया जाता है और ये willful है, आपके विल पे है, और अवॉइडेबल है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब देखो एक बहुत मजेदार फिगर देखो, कहा जाता है कि 15% of the workers in an organization are responsible for 70% of absenteeism. इसका मतलब समझे? चलो इसको छोड़ो। इस क्लास के समझो ऐसे, इस क्लास में कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मुझे लगता है कि सारे टीचर्स जानते होंगे, बट देयर आर अदर स्टूडेंट्स जो कभी नहीं आए, वो एक अलग सीन है। बट जो आते हैं और 10 दिन में एक दिन आ जाएंगे क्लास में, जैसे आई थिंक कि इफ इज हियर और नॉट, कि एब्सेंट
एक आध बार हो जाना इज फाइन, बट व्हेन यू मेक इट अ रेगुलर फीचर इट इज प्रॉब्लमेटिक। और डेटा ये बताता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि 15% जो एम्प्लॉयज हैं वही 15%, जैसे जिनका मैंने अभी नाम बताया उनको सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर वो इस क्लास का 15% है, they will be responsible for 70% absenteeism। मतलब अगर हम absenteeism इस क्लास का कैलकुलेट करें, which is calculated by the number of man days absent divided by the number of man days scheduled to work into 100, से अगर हम absenteeism कैलकुलेट करते हैं तो हम देखेंगे कि यही जो लॉट है ये इस क्लास का 70% एब्सेंटिज्म कॉज करता है। अब फिगर समझ में आया? और बाकी का 30% में तुम हो सकते हो, तुम हो सकती हो, तुम हो सकती हो, कि कभी कभी ये एब्सेंट होते हैं, बट दिस एंटायर 70% एब्सेंटिज्म ऑफ दिस क्लास इज डन बाय दोस 15% स्टूडेंट्स। यही फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। देयर आर पीपल जो 15% लोग हैं, वो ही लॉट है जो पूरा 70% एब्सेंटिज्म कॉज करता है। ठीक है, अब देखो एब्सेंटिज्म का कुछ फीचर्स देखा गया है। इस फीचर्स में है पहला, एब्सेंटिज्म का कुछ फीचर्स जब खंगाला जाता है कि क्या है फीचर्स, क्या रेगुलर एक फिनोमिनन है एब्सेंटिज्म से रिलेटेड, तो ये देखा जाता है कि हॉलिडे के जस्ट पहले वाले दिन, आई नॉट इरेज इट, यू राइट इट आफ्टर क्लास, हॉलिडे के जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला जो दिन होता है उस दिन एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा होता है। एंड एवरी वन ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस। एकदम वाइब बन जाता है छठ के टाइम पे, घर जाना है, घर जाना है, बिना मतलब नहीं होता है, जिसके यहाँ उसको भी लगेगा कि छठी में जाना है, होता है ना। तो वर्कर्स के केस में ज्यादा इसलिए होता है कि वो जब घर जाते हैं तो वो पहले की छुट्टी थोड़ी पहले से एब्सेंट हो गए क्लास में, क्योंकि छुट्टी का क्या सीन होता है कि देखिए जैसे सैटरडे आप काम करेंगे, सैटरडे संडे का छुट्टी है, ठीक है, जैसे सैटरडे एंड संडे इज द हॉलीडे। अगर तुम फ्राइडे को एब्सेंट हो गए और मंडे भी एब्सेंट हो गए तो ये छुट्टी चली जाएगी, ठीक है, छुट्टी ऐसे होती है। अगर फ्राइडे आए हो तो ठीक है, लास्ट वाले दिन से अब तुम ये थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर फ्राइडे तुम नहीं आए हो, ओके, लेकिन संडे तुम पहुंच के मंडे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे होता है छुट्टी का कैलकुलेशन। So absenteeism has been found more on one day before and after the holiday. दूसरी चीज, 25 से कम उम्र के जो एम्प्लॉयज होते हैं और 55 से ऊपर उम्र के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इन दोनों में एब्सेंटिज्म बाकी के एज ग्रुप से, यानी 26 से लेकर के 55 साल के बीच में ज्यादा होता है, ऐसा देखा गया है। समझ में आई बात? 25 से बोलो, 25 से 25 से कम और 55 से ऊपर, इस एज ग्रुप में एब्सेंटिज्म ज्यादा देखा गया है। इसका कारण बता सकते हो? देखो, इसका कोई रिटन रीजन नहीं है, देयर इज जस्ट यू कैन थिंक ऑफ सम रीजन, और इसको बिल्कुल ह्यूमन सेंटिमेंट्स के साथ आप जोड़ करके बताइए। 25 से कम है इसका मतलब हम अवेयर कम है,
ओके, अवेयर एज इन, हाँ, कि आप आपकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है, वो एज होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा एज होता है। एंड देन द अदर थिंग इज व्हेन यू डू नॉट हैव मच रिस्पांसिबिलिटी, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू मेजर वर्क। अगर तुम किसी टीम के प्रोजेक्ट के टीम लीडर ही तुम हो, तो तुम ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। तो वो जो इशू है वो 25 से कम का है, और 55 के ऊपर तो यू सेड इट राइट। एक तो चीज ये होती है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज, दूसरी ये कि रिटायरमेंट का एज जब नजदीक है तो क्या ही इतना सीरियस होना है, ठीक है। थर्ड, फीमेल एब्सेंटिज्म इज मोर देन मेल एब्सेंटिज्म फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, ड्यू टू द फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूअल लाइफ रिस्पांसिबिलिटीज। The operative employees, यानी ऑपरेशंस में नीचे फ्लोर लेवल पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें जो एब्सेंटिज्म का रेट है वो मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज से ज्यादा है। ये देखा जाता है कि जब एब्सेंटिज्म को कैलकुलेट किया जाता है तो इट इज फाउंड दैट द ऑपरेटिव लेवल एम्प्लॉयज दे एब्सेंट more from work than the managerial or executive level employees of the organization. Okay, कुछ एब्सेंटिज्म देखो, ये रीजन है, कुछ एब्सेंटिज्म अल्कोहल और गैम्बलिंग की वजह से भी होता है, ठीक है। अगर उस लेवल एम्प्लॉय की तुम बात करोगे, डिड यू हियर दैट न्यूज जो अभी which was trending a lot, दीपक ये जनरल बिपिन रावत के डेथ पे जो एक न्यूज रिपोर्टर was live and he was suspected to be drunk and he was commenting रिपोर्टिंग और बहुत सारा मिस स्पेलिंग किया था उसने, ठीक है, तो उसको शायद कुछ एक्शन हुआ है उसके इस पे। लेकिन दिस इज वेरी कॉमन विद ऑपरेटिव लेवल एम्प्लॉयज। आप जानते हैं कि वैसे वर्कर्स का बैकग्राउंड क्या होता है, ठीक है। सो ड्रिंकिंग विल आल्सो मेक यू लेस एफिशिएंट ऑन वर्किंग। ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत क्लियरली मेंशन किया जाता है कि अगर आप ड्रंक फाउंड होते हैं तो आपको फायर कर दिया जाएगा। So even if you are drunk outside the organization, what's the big deal? You will come hallucinated. You will not feel like going to work. तो इसीलिए बहुत सारे और रीजंस हैं, जैसे एचआर में एक और टॉपिक है, एचआर में एक और टॉपिक है, इसको कहते हैं हम एम्प्लॉय काउंसलिंग, ठीक है। एम्प्लॉय काउंसलिंग कहते हैं हम। एम्प्लॉय काउंसलिंग बहुत सारे टाइप की होती है, इसमें काउंसिल किया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हेन यू स्टडी इन ओपी और एचआर। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारा ट्रेनिंग वर्कशॉप भी चल रहा है। रीजंस ऑफ स्ट्रेस में बहुत कुछ है, टू मच ऑफ एम्बिशियस लाइफ, बहुत एम्बिशियस हैं हम लोग तो इसीलिए कभी पीस पे नहीं रहते हैं, ये भी एक रीजन है। हमेशा और आगे और पैसा और पोस्ट और पोजीशन के चक्कर में you are never at peace, you never really enjoy it. Second thing, dual career couple, ये वर्ड समझते हैं? Dual career couple, the couple where the husband and wife both are working, okay. So this is also in proper HR terms, this is also one reason which is responsible for today's stressful time, because the husband and wife both are working, and since both of them are working, so juggling between the family responsibilities and professional life becomes very tough. Managing your personal life along with the child becomes very, very challenging. Sometimes when you are more career oriented and you get an opportunity and you cannot be geographically situated together, समझ रहे हैं आप? जैसे अलग शहर में आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली and you moved, then juggling between your personal life also creates a lot of stress. तो ये भी एक फैक्टर है। उसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है, करियर स्ट्रेस एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। जब एम्प्लॉय काउंसलिंग, बहुत अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आजकल एम्प्लॉय काउंसलिंग कराती है, जिसमें कि जो काउंसलर होता है
वो कोई बाहर का बंदा होता है, और ऑब्वियसली काउंसलिंग का मतलब होता है टचिंग वेरी डीपली एंड ऑन पर्सनल लेवल्स your hopes, your fears, your emotions, okay, your problems, और उन चीजों को आप एम्प्लॉय काउंसलिंग में पुट फॉरवर्ड करते हैं। आप देर आर मेनी, देखो मेनी टाइम्स इन सारी चीजों से और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर तुम कहीं हेल्थ कैंपेन के बारे में समझते हो, एम्प्लॉय काउंसलिंग समझ में आती है बात? एम्प्लॉय काउंसलिंग सुने थे पहले? देखो